So today we are going to start with a new topic, new chapter. So since we have already finished up with the databases, so the next topic or next chapter is operating web. Now in this chapter we'll try to cover up all things related to internet, but all services are available to us on internet which we can use, and then how we can use them, what are the steps, what are the methods. We'll try to learn all such things. So I'll just move on to the screen. Okay, as you see here, this is this unit 2 operating web. The very first thing is what are web based applications. The applications that can be accessed via a web browser over a network connection is called as web-based application. So all applications that we access through a web browser means through internet, such applications are called as web-based applications. And such applications are available 24/7 across the world. क्योंकि इंटरनेट पे जो अवेलेबिलिटी है वो 24 आवर्स की अवेलेबिलिटी है एंड इट्स अवेलेबल every day of the week, right? If you talk about what all applications are available, we'll just go through just there's a reservation of tickets, booking, e-governance services, online shopping, making online payments through credit cards and all, using online tutorials and tests and learning through online medium. All such thing comes under web applications, right? So we generally categorized such applications in two forms. One is where finance is involved, financial online transactions where money is involved, and another one is where there's no money involved, only information and interaction takes place. The information is passed on to people and interaction takes place, right? Like filling up online form, posting a query, और सेंडिंग ईमेल और चैटिंग, ये सब इस सेकंड कैटेगरी में आएगा. फर्स्ट कैटेगरी में जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जैसे बाइंग थिंग्स और सेलिंग थिंग्स, ठीक है. तो ये दो कैटेगरी में एप्लीकेशंस को डिवाइड किया जाता है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू लर्न हाउ ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम वर्क्स and how do we do this. Now online reservation systems, they allow us to book or cancel a ticket using internet, राइट. ये बड़ा कॉमन से आजकल हम लोग बहुत करते हैं. जैसे एयरलाइन टिकट्स बुक करनी है, रेलवे टिकट्स, बस टिकट्स, मूवी टिकट्स, होटल बुकिंग, कार रेंटल, टूर एंड ट्रैवल बुकिंग. So all these comes under this online reservation system, right? So अब इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है. सबसे पहले चीज़ तो है कि we get a lot of options there whenever you go for online booking. उसमें हमें कंपैरिजन प्राइसेस मिलते हैं, तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है आप लोगों के लिए. जैसे एयर टिकट्स भी है, तो लॉट ऑफ साइट्स आर देयर वेयर यू कैन search on various air services of different companies, and then you can compare the prices and choose the best possible one for you people, ठीक है. सो ये कुछ इसके फायदे हैं. लेट्स डू इट इन डिटेल. what are the advantages of these online reservation systems? First thing is that advantages for the consumers, the person who is using the service. उसके लिए सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि ये बहुत कन्वीनियंट वे है. the user can book tickets online anywhere, anytime and anywhere, right? You can sit at your home and then you can do the bookings. You need not to go to any of the booking office for getting the booking done. So this is very handy thing because it saves a lot of time for us. It saves energy. You don't have to stand in a queue for getting the things done.
And moreover, it also gives an option to change the things. Like if I have booked a ticket and later on I want to change it, I want to upgrade it or cancel it, such things can also be done at your end very easily, right? So पहली चीज तो हो गई convenience है. Second advantage for a consumer is that price comparisons can be done. As I told you, like if we want to book up a ticket, जैसे मूवी टिकट बुक करनी है, तो आपके पास जब आप साइट पे या किसी ऐप पे जाओगे, you'll get lot of options. पीवीआर की टिकट कितने की है, बिग सिनेमा की कितने की है, वेव की कितने की है, तो आपको जो बेस्ट सूटेबल लगता है यू उसमें से आप चूज कर सकते हो. So you can check the prices, you can compare the prices, you can find the best deal out of all these options. ठीक है, अभी एक एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया हुआ है makemytrip.com का. Now here you have to just fill the source and the destination locations जहाँ से आपको फ्लाइट लेनी है. तो सोर्स और डेस्टिनेशन डालो, आपको जितने भी पॉसिबल फ्लाइट्स हैं उस सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, जितनी भी अलग अलग एयरलाइंस की, वी विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल सच थिंग्स, right, with their details and price. Like you can see here ये स्पाइस जेट है, स्पाइस जेट का डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम दिया है, ड्यूरेशन दिया है और प्राइस दिया है. ऐसे ही गो एयरवेज का अलग अलग है. सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज सेम, and only thing is the variation is in the departure time and arrival time and the durations and the prices. So ये लिस्ट में से आपको जो बेस्ट सूटेबल लगता है उसको आप, उसके आगे बुक का ऑप्शन होगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस बुक ऑप्शन and then you can book it, right? You have to go with some further settings. I have to will do one example afterwards how to book a ticket. ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं प्राइसेस का. तीसरा एडवांटेज, थर्ड एडवांटेज इज द सिक्योरिटी. Nowadays all online reservation system sites, they allow us to create a profile first. Now whenever you create a profile, you have to create a username and password. तो यूजर नेम पासवर्ड जब बनता है तो आप आपका जो एक्सेस करने का जो तरीका है वो सिक्योर हो जाता है काफ़ी. बिकॉज ओनली इफ यू अप्लाई अ पासवर्ड, ओनली देन यू कैन लॉग इन इनटू दैट पर्टिकुलर साइट एंड देन यू कैन डू द, यू कैन अवेल द सर्विसेज. सो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है सिक्योरिटी फीचर. सेकेंड इज confirmation of reservation. Confirmation is that the moment you are done with the booking, उसी टाइम विद इन सेकेंड्स विल गेट द कंफर्मेशन बैक कि भी आपकी सीटिंग जो बुक है, सीट है जो वो बुक हो चुकी है. ठीक है ना. सो यू कैन डाउनलोड दैट पर्टिकुलर टिकट ऑन योर मोबाइल, ऑन योर कंप्यूटर, और इवन यू कैन गेट इट प्रिंट फ्रॉम, इफ यू हैव अ प्रिंटर, और यू गेट इट प्रिंटेड फ्रॉम आउटसाइड. तो ये कंफर्मेशन आपको इंस्टेंटली मिलता है इसका. देन वी हैव एन ऑप्शन टू मेक चॉइसेस. लाइक इफ यू वांट अ विंडो सीट समवेयर, जैसे हम लोग एयरलाइंस की बात करें तो एयरलाइंस में टिकट चाहिए, तो आई वांट अ विंडो सीट दैट यू कैन चूज फ्रॉम देयर, राइट. एंड इफ यू टॉक अबाउट रेलवेज, रेलवे में मुझे लोअर बर्थ चाहिए, अपर बर्थ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद, सो यू कैन गो विद दैट चॉइस, कैन पुट अ चॉइस दैट कि मुझे लोअर बर्थ ही चाहिए, यू विल गेट ए कंफर्म सीट इन द लोअर बर्थ ओनली. So such choices we can make. Apart from this, we can make choices of the food also, bedding also. किस तरह का फूड चाहिए खाना, नॉन वेज वेज जो भी है, that requirements you can give. And you can go for bedding also if you need a bedding. So such things can be, such choices can be made before making a reservation, right? Then it is always time saving. It takes very less time to book a ticket, to do online reservation, because you don't have to stand in queues and counters, on the counters. तो लाइंस में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका टाइम बहुत बचता है इससे. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउडेज वी आर गेटिंग लॉट ऑफ डिस्काउंट स्कीम्स ऑल्सो, क्योंकि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनमें कंपटीशन होता है, तो दे कीप ऑन गिविंग अस डिस्काउंट स्कीम पे, अगर आप इतने बजे तक कर लोगे या इस लेवल तक कर लोगे आपको इतना % डिस्काउंट देंगे. सो उससे भी हमें काफ़ी इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाती हैं चीज़ें. ठीक है, लाइक इफ़ यू गो विद एडवांस बुकिंग, और इफ़ यू गो विद सीजनल डिस्काउंट्स आते हैं, सीजनल डिस्काउंट्स बहुत मिलते हैं, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है. सो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट ऑल एडवांटेजेस वी
are there for the customers. Now we'll come talk about advantages for the providers, the people who are giving such services. जो companies हैं जो हमें provide कर रही हैं services, उनको क्या फायदे हैं? First thing is they require less staff, less manpower is required, right? So every task is done on computer only. कंप्यूटर पे सारा कुछ होना है, तो हमें ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सेकेंडली देयर इज नो स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस. आपको कहीं कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे ऑफिस डालने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन वर्क एट योर होम, यू कैन चूज अ स्मॉल एरिया एनीवेयर एंड देन यू कैन डू द वर्क, ठीक है. लोकेशन स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो उससे एक और फ़ायदा होता है कि आपके कॉस्ट जो है, आपके जो बिल्स हैं वो कम हो जाते हैं, राइट. इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सब चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएंगी. अगर आप घर से ही काम कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो उससे आपके ये जितने भी ओवरहेड कॉस्ट है वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है. देन वी कैन एक्सेस द ग्लोबल मार्केट. नाउ दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. लाइक इफ आई एम हैविंग ए शॉप, तो शॉप अगर मेरी है तो शॉप तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगी और वो उस एरिया के अंदर अंदर ही एक्सेसिबल होगी. बाहर से कोई आके उसको मेरी शॉप पे एक्सेस नहीं कर सकता चीज़ों को. सो अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपका जो एरिया है, वो स्पैन जो है वो बढ़ जाता है. ग्लोबल मार्केट आपको एक्सेस कर सकती है. कोई भी कहीं किसी भी लोकेशन से आपकी सर्विसेज को यूज किया जा सकता है. So it is quite a good advantage for provider also, right? So these are all things. Then the next thing is what all precautions we should we should take before performing any kind of online transactions. See, जब भी हम ऑनलाइन ऐसे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, रिजर्वेशंस हो जहाँ पे मनी वगैरह इन्वॉल्व हो, तो फ्रॉड्स होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, राइट. तो उसमें उससे बचना कैसे है? हाउ विल यू प्रिवेंट योरसेल्फ? फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you are creating a username a password for your account, तो वो यूजर नेम पासवर्ड जो आप बना रहे हो वो इट शुड बी mix and match of user numbers, characters और even cases, राइट. जैसे पासवर्ड रखा है तो पासवर्ड में मिक्स केस होना जरूरी है. मिक्स केस मतलब कैपिटल स्मॉल दोनों होने चाहिए. फिर यूजर नंबर्स यूज करो, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करो, ठीक है. सिंपल नेम्स रखने की बजाय ऐसे कॉम्प्लेक्स बना के पासवर्ड बनाने चाहिए. तो दिस डिक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ अटैक, ठीक है. सो ऑटोमेटिकली इफ एनीबडी ट्राइज टू अटैक एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू गेस योर पासवर्ड. तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है. ऐसे ही यूज़र नेम्स भी, अब जो भी आप बनाओगे वो यूज़र नेम भी ऐसे इजी ना हो ताकि इजीली एक्सेस हो जाए, राइट. And please do not share your password around and do not share it to your friends and even anybody. So don't give your passwords to anybody. And whenever we are using a password or setting a password, don't use the names of your dears and near ones क्योंकि वो बड़े easily guess हो जाते हैं, ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है before doing this. Now we'll come to how to use online reservation system. हम ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम करेंगे कैसे, अब हम उसको समझते हैं. नाउ द थिंग इज दैट ऑनलाइन रिजर्वेशन करने के लिए वी नीड अ ब्राउज़र, वी नीड इंटरनेट कनेक्शन आल्सो. हमें किसी ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा. ब्राउज़र में जैसे गूगल क्रोम है या एक्सप्लोरर है या मोजिला है. तो इफ़ यू नो दी वेबसाइट एड्रेस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑनलाइन रिजर्वेशन साइट, तो आप एड्रेस बार में उसको टाइप करो और एंटर दबा दो. और अगर नहीं, then go to any of the search engines like google.com, then type there whatever, like if you want air tickets, so you'll just write Air India ticket booking. So you'll get a link of all different web pages where tickets are booked and on for Air India flights. सो इनमें से जो लिंक आपको फिजिबल लगे उसको क्लिक कर लो. जैसे ये AirIndia.in, ये इनका ऑफिशियल लिंक होगा, इस पे जाके आप कर सकते हो. ये ऑनलाइन बुकिंग वाला ऑप्शन है एयर इंडिया का ऑफिशियल. तो जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, विल सिंपली जंप टू that particular web page where booking is options are available, right. So just open those particular site, then browse and search for the required information that you want and use the services, right. अब ये यूज़ कैसे करना है उसके ऊपर हमने एक केस स्टडी यहाँ पे बुक में है, विल फॉलो दैट.
This is regarding online ticket booking, train tickets booking with the help of a portal which is Indian Railway Catering and Tourism Corporation portal, IRCTC का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पे हम टिकट कैसे बुक करते हैं रेलवेज की, वो हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, IRCTC जो है वो गवर्नमेंट का है, रेलवे डिपार्टमेंट का है, एक ऑफिशियल उनकी वेबसाइट है, वेब पोर्टल है, जिससे आप कोई भी पर्सन जो है वो ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है, right? Now to use the services, first of all you have to type the IP address, sorry, the website address of IRCTC site. It is given over here, like you can see, www.irctc.co.in. So this you have to type in your in the address bar of the browser and then press enter. ठीक है, तो आपका ये जो होम स्क्रीन है, as you see here in the figure, ये आपका होम स्क्रीन खुल जाएगा। अब यहाँ पे if you see there's an option called as login. In the login we have user ID, password, captcha, and then some login options. See, user ID, password is important because without this you cannot access the services of this particular site. अब ये user ID, password बनाना कैसे है? If you see here at the bottom you'll find an option called as sign up. So when you click on this sign up, you'll get a form kind of thing where you can create your own username and password. You have to set your username password yourself. You have to give certain details, and then once you are filled with that details, then you submit those details and you'll get a ID and password. और ID पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड हम लोग खुद बनाते हैं अपने हिसाब से अपने लिए, और जो आपने वहाँ सेट किया है सेम यूजर नेम पासवर्ड आप वहाँ से यूज करके you can log in into this particular page. Okay, we'll see how this new account can be created. जैसे मैंने बताया, साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करो, आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, फिल अप दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म. On that registration form you'll find certain places where some star mark is given, right? Star mark जहाँ पे दिया है वो मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, उसको भरना ज़रूरी है. इस पे स्टार मार्क नहीं है वो आप छोड़ सकते हो. So once you fill up all the things in that form, you click on the submit button. Submit करने पे then you can start with the online process. ठीक है, I'll show you the form also. This is the form, a little blur over here, so I'll just read out. यहाँ पे पहला ऑप्शन है यूजर नेम. यहाँ पे आप अपना यूजर नेम बनाओगे, जिस यूजर नेम से आप लॉग इन कर सकते हो बाद में. That user name you have to create over here. There's one security question over here. You have to choose one security question from the list given. क्योंकि ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन केस आप फॉरगेट कर जाते हो पासवर्ड को, तो देन द साइट विल आस्क यू दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव द आंसर फॉर दैट, जो आंसर आपने यहाँ पे सेट करना है. तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड योर आंसर दोनों ऑप्शंस हैं और दोनों मैंडेटरी हैं. ठीक है, और ये दोनों हेल्प तब आएंगे जब आप पासवर्ड कहीं भूल गए हो. इफ यू हैव फॉरगेट योर पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन में जाके द साइट विल आस्क यू this question whatever you have set here and you have to give the answer for that, and if your answer matches with it, then they'll provide you the alternative link for creating a new password, right? Then there's an option for first name, last name, gender, marital status, date of birth, occupation, Aadhaar number. Aadhaar number is not mandatory, star नहीं है वहाँ पे. Email ID is mandatory, mobile number is mandatory, nationality you have to put. तो ये सारी फील्ड्स आप फिलअप करो और उसके बाद नीचे सबमिट बटन होगा, सबमिट बटन पे क्लिक कर दो तो आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा. तो जो लॉगिन आईडी आपने यहाँ पे यूजर नेम दिया है, लॉगिन आईडी यूजर नेम बोथ आर सेम, तो जो यूजर नेम आपने यहाँ पे सेट किया है और जो पासवर्ड आपने सेट किया है, वो पासवर्ड और यूजर नेम दोनों के दोनों आपको यूज करके लॉगिन करना है. ठीक है, now let's start with how do we plan this thing, how to book a ticket. Like this is the, let's say you have used your user ID and password and logged in. जब आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी as you see over here. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे you'll find plan my tour travel box over here. इस plan my travel box में आपका plan my journey लिखा होगा, plan my journey या travel लिखा होता है. इसमें दो ऑप्शन होते हैं, स्टार्ट स्टेशन और एंड स्टेशन.
तो इसमें आपको वो भरना है कि आपने रेलवे अपनी जर्नी जो है कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पे आपने जाना है। तो स्टार्टिंग स्टेशन और एंड स्टेशन दोनों की वैल्यूज आपको, दोनों जगह के नाम आपको यहाँ डालने पड़ेंगे, राइट। So moment you put on the names, automatically आपको बिकॉज ये जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है इसमें हर जितनी भी सिटीज हैं उनके एक शॉर्ट कोड्स होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे लेट्स से इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम जलंधर टू न्यू दिल्ली, सो जब फ्रॉम स्टेशन पे आप जलंधर लिखोगे, जलंधर लिखते ही वहाँ पे उसका शॉर्ट नेम आ जाएगा, यू जस्ट हैव टू टिक क्लिक ऑन दैट। सिमिलरली जो टू स्टेशन है वहाँ पे आप न्यू दिल्ली लिखो, न्यू दिल्ली का एक शॉर्ट नेम आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, तो वो नेम वहाँ पे सेलेक्ट होता है। इफ यू नो दोज नेम्स यू कैन टाइप लाइक फॉर न्यू दिल्ली इट इज NDLS, फॉर जलंधर इट इज JUC, राइट। सो ऐसे शॉर्ट नेम अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज you type the full name and you'll get that option there, ठीक है। The next option is your what type of service you want. You want e-ticket, you want AC ticket or whatever service you want to take, that service you have to select। और इसमें एक डेट का ऑप्शन होगा, चार ऑप्शन आपको यहाँ से भरने हैं, राइट। एंड देन क्लिक ऑन सर्च बटन। So the moment you click on search button, you'll get the list of all, as you see here. If from station, to station, journey date, ticket type, click on submit. You'll get the list of all the trains available within on that date from this station to this station. ये सोर्स और डेस्टिनेशन लोकेशन से जितनी ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी है उनकी लिस्ट आपको आ जाएगी विद देयर डिटेल्स। यूल फाइंड ट्रेन नंबर्स देयर, ट्रेन नेम्स देयर, फ्रॉम फ्रॉम मीन्स फ्रॉम वेयर दे आर स्टार्टिंग, डिपार्चर टाइम क्या है, कितने बजे चलेगी ट्रेन वहाँ से, टू मीन्स व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेन, और उसका अराइवल टाइम, डेस्टिनेशन पे कितने बजे पहुँचेगी, कितना डिस्टेंस कवर करना है उसने किलोमीटर्स में, और कितना ट्रेवल टाइम है, राइट। और इसी के आगे बुक का ऑप्शन होता है, राइट। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट बुक ऑप्शन, और बेस्ट वे इज लाइक इफ यू जस्ट choose the train service as per your requirements, like if I want to travel in the morning, तो मॉर्निंग वाली ट्रेन का डिपार्चर टाइम यहाँ से देख के उस ट्रेन नंबर पे क्लिक कर दो, राइट। so when you click on that number will that particular train and its information will be opened up, right. One more thing you can do over here is that you'll find journey class section here, where you can set that you want AC first class or second class or third class और स्लीपर क्लास, आपको कौन किस तरह का सर्विस चाहिए वो सर्विस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रेन टाइप्स यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट, लाइक इफ यू वांट ओनली राजधानी और गरीब रथ एंड अदर ट्रेन्स, so such kind of selections you can make from here. So once you are done with the things, you just click on the train that you want to choose. उस ट्रेन नंबर पे क्लिक करो, जैसे पंजाब मेल है पहली ट्रेन नेम, उसका ट्रेन नंबर गिवन है, उस पर क्लिक करेंगे तो पंजाब मेल की ये है, देखिए ये दिस इज द पेज, यू विल गेट ये पंजाब मेल वाला ही ऑप्शन है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल शो यू दी अवेलेबिलिटीज। अवेलेबिलिटी मतलब कि टिकट अवेलेबल है कि नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी शो करता है। दिस इज RLWL लिखा है, RLWL इज वेटिंग लिस्ट। सो अगर कंफर्म है तो यहाँ पे कंफर्म लिखा हुआ, कितनी सीट्स कंफर्म है दैट इज ऑल्सो रिटन, ठीक है। इसके जस्ट नीचे बुक नाउ ऑप्शन है, व्हेन यू क्लिक ऑन बुक नाउ ऑप्शन then you have to fill up a form where you have to put up the details of yourself, कि कौन कौन जा रहा है, कौन कौन से ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उनके डिटेल्स डालनी होती हैं। और यहाँ पे बेस फेयर और टोटल फेयर कितना है, कितना टोटल वो बनेगा फेयर, दैट यू कैन ऑल्सो सी, राइट। और ये ट्रेन जो है, इस ट्रेन की पूरी रूटीन डिटेल्स भी मिल जाएंगी आपको, लाइक इस ट्रेन में कौन कौन से स्टेशन आते हैं या कुछ, all such kind of things you will find out. So once you click on any of these book options, ये book now options 4-5 हैं, ये dates हैं अलग अलग, तो अलग अलग dates के हिसाब से आपको जिस date को booking करना है उस date के book now option पे click करो, and you'll get this form. In this form you have to fill up the names of the person who want to travel, उन सबके नाम, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, और ये बर्थ प्रेफरेंस देनी है। बर्थ प्रेफरेंस वही है कि अगर आपको लोअर बर्थ चाहिए या अपर बर्थ चाहिए, ऐसी कुछ प्रेफरेंस देना चाहते हो तो ये दे सकते हो।
and there's an option called as senior citizens also here, because जो senior citizens हैं जो 60 years से ऊपर हैं उनको कुछ डिस्काउंट मिलता है जो फेयर है उसके अंदर. So this you can select if some senior citizen is also traveling, right? So likewise you can fill up the form like this. If a form has been filled up, ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको नीचे फेयर डिटेल्स और अवेलेबिलिटी दोनों चीज़ें दिख जाएंगी कि सीट्स अवेलेबल हैं तो कौन से सीट नंबर पे अवेलेबल हैं और उसका टोटल फेयर कितना बना. And after you check this fare, and then you can process with the payment options. You can see payment options are there. We have 5 options over here. एक नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हो. क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है, डेबिट कार्ड ऑप्शन है, कैश कार्ड ऑप्शन है, EMI ऑप्शंस आर आल्सो देयर. नीचे बैंक सिलेक्शन का ऑप्शन है, आपको बैंक सेलेक्ट करना है और देन चूज एनी ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल एंड देन यू कैन पे द बिल. तो जितना भी यहाँ पे फेयर बना है दैट यू नीड टू पे. So once it is paid, then your tickets is confirmed, and then like this is the interface of the payment. ऐसे ये इन्होंने क्या किया है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट इंटरफेस ओपन किया है. As you see here, इसमें सिटी बैंक सेलेक्ट किया था इन्होंने, and there are some transaction charges for this 1.8%. So whatever is the amount, उसमें 1.8% transaction charges भी पड़ेंगे. This is the things that you need to fill up. इसमें कार्ड टाइप कौन सा है, कार्ड का नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, CVV नंबर क्या है, what is the name written on the card, and then you have to put this captcha image, right? ये कैप्चा सिक्योरिटी इमेज होती है, ये आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करके the characters you have to type over here and then click on enter. So that's it, your ticket will be booked in this case, and then finally once you are done with everything तो आपको PDF फाइल में टिकट मिल जाएगी that you can download, or you can keep it in the login ID itself. You can download it later on, क्योंकि वो हिस्ट्री ऑप्शन के अंदर सेव हो जाती हैं, अब बाद में भी डाउनलोड कर सकते हो, और you can get it printed also, right? So this is how things are done, right? Let's check up if anything is left over. So हमने ये कर लिया. Electronic copy of the paid ticket is shown at the end, right? So whatever ticket is booked, उस ticket का एक electronic copy बन जाएगी that you can download, or you can also go with the email option. You can send that ticket to your email address. तो आप वहाँ से उसको ओपन करके दिखा सकते हो और या प्रिंट भी कर सकते हो. Fine. So this is how online transaction takes place, online reservation system takes place. I hope you people have understood this. Now I'll start with the next topic. It is e-governance. We'll just go through it because we don't have much time left. So हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि होता क्या है, बाकी इसकी सर्विसेज हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. E-governance means it's a electronic governance where some electronic technology is used for by the government for giving the services to the citizens. ठीक है, तो ई गवर्नेंस एक ऐसी सर्विस है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके गवर्नमेंट क्या करती है, अपने सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है. ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, ज़्यादातर इंटरनेट सर्विसेज हैं, बट नॉट ओनली इंटरनेट सर्विसेज, लाइक लोकल एरिया नेटवर्क्स कैन बी यूज, मोबाइल्स कैन बी यूज. तो जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी यूज होके जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज किसी सिटीजन के पास आ रही हैं, सच सर्विसेज आर कॉल्ड एज ई गवर्नेंस सर्विसेज, राइट? सो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आजकल, जैसे if you want to apply for आधार कार्ड, तो we have a online portal for it, वो गवर्नमेंट की सर्विस है. जैसे अभी हमने IRCTC की बुकिंग की, ये भी गवर्नमेंट की सर्विस ही है. दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस. ठीक है, बर्थ डेट, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर आती हैं, और इन सब को हम ई गवर्नेंस यहाँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की सर्विसेज है. ठीक है, सो इसमें भी दो तरह की कैटेगरीज हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज लाइक वेयर सिर्फ some information is passed on by the government to citizen, that's it.
राइट। जैसे आजकल कोविड की आरोग्य सेतु ऐप है, उसमें आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन सी क्या उसकी अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, विल गेट ओनली द इंफॉर्मेशन, राइट। So the other type of service is where customer can ask the government for any kind of service, कि जहाँ पे आप कस्टमर जो है अपने रिक्वेस्ट वगैरह डाल सकता है या अपनी क्वेरी वगैरह डाल सकता है, गवर्नमेंट से कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दो तरह की सर्विसेज हैं, जिसमें वन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओनली एंड सेकेंड वन इज टू प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज, राइट। द सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑनलाइन सर्विसेज में देखें तो जैसे RTI ऑप्शन है। तो RTI में क्या होता है कि आप, RTI इज ऑल्सो इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना है कि भाई उसका ऑर्गेनाइजेशन में कुछ क्या चल रहा है, या फिर यू वांट सम पर्टिकुलर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो यू कैन पुट अप RTI ऑनलाइन टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो वो ऑटोमेटिकली उस डिपार्टमेंट के पास एक रिक्वेस्ट चली जाती है, फिर वो उस डिपार्टमेंट को विद इन 21 डेज आपको वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक तरह की सर्विस है जो कस्टमर अपने या जो सिटीजन है वो गवर्नमेंट से ले सकता है। सो दिस इज वन काइंड, एंड सेकेंड काइंड इज जस्ट लाइक आई टोल्ड यू दैट वी गेट ओनली वन सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस, और उस इंफॉर्मेशन को हम सिर्फ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें हम एज ए सिटीजन वी कैनॉट send any kind of message to the government, we cannot ask anything from the government। ये दो तरह की सर्विसेज हैं, right। So I think I'll end up here now because the rest of the things we'll cover up the next time. I hope you people must have understand this. See, the things are quite easy because you just have to explore it, because ये ऑनलाइन रिजर्वेशन वाला जो काम है बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग इसको करते हैं, हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए। ठीक है, और ट्राई टू डू दिस अगेन, create an login ID for you people for IRCTC and try it। ठीक है, बुकिंग पेमेंट से पहले तक तो आप कर ही सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो, और अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है, so go for it, then practice the things, and if you have any kind of doubts and questions you can ask later on, or even you can post a message right now if you want to post। Fine। सर हाँ जी बेटा। सर टेस्ट के मार्क्स क्या हैं?